and we are doing question number 3. हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में रीड किया था, बट लेट्स रीड अगेन. क्वेश्चन 3. Ajanta Limited agreed to acquire the Illora. So Ajanta is a purchasing company. Illora is a old selling company. The balance sheet of Illora on that date was as under: fixed assets, land building, फिर क्या है, करंट असेट्स, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, this side stock, debtors, bank, discount, preliminary expense. The consideration payable by new company Ajanta was as under: number 1, the preference holders were to be allotted preference shares of rupees 1,10,000 clearly given. Second, equity shareholders to be allotted 6 equity shares of 10 each at a premium of 10%, means 10 each at 10% premium. 10% is 1 rupee, so agreed value is 1. And also rupees 3 cash, and that is against every 5 shares held. So this is your PC. What is PC? PC means consideration payable by new company to the selling company shareholders. Next, 7% debenture holders of Illora to be paid 8% premium by Ajanta Limited by 9% debentures at 10% discount. Who pays whom? The old company debenture holders will be paid off by Ajanta. Now that is possible only when, first of all, purchasing company takes over the old debenture holders and then pay off. So this adjustment will come in new company. First of all, purchasing company, new company where I mean is purchasing company, will have to take over the debenture, then pay off. So we'll discuss it that time. It has nothing to do with PC. While arriving at the agreed consideration, the directors of Ajanta valued land building 250, stock 220, debtors at the book value subject to an allowance of 5% to cover doubtful debts. Debtors of Illora included 10,000 due from Ajanta. So this is an intercompany debt. This intercompany debt does not affect calculation of PC. Calculate as usual. Intercompany debt does not affect, I say does not affect closing the old company, close as usual. It doesn't affect opening of purchasing company, open as usual. But afterward, when you start preparing balance sheet of purchasing company, you have to cancel intercompany debt. We have discussed this before, but we will discuss it again. We have discussed in other topic, but we will discuss here also. Machine at book value. It was agreed that before the acquisition, Illora will pay dividend at 10% on equity shares. The preference dividend was already paid. Liquidation expense were 5,000. Draft journal entry to close the books of Illora and acquisition in the books of Ajanta. How do we start this up? First and foremost, after reading the question, calculate purchase consideration. Okay? We have calculated last time, but let's recap it. Okay? So, purchase consideration. Calculation of purchase consideration. For preference holders, it's very clearly given that preference holders were to be allotted preference shares. Those who got the question, it's good. By chance, if you don't have, take the screenshot. Take the screenshot. The preference holders will be allotted rupees 1,10,000 new preference shares. So I've written here. For preference shareholders, preference shares in Ajanta, 1,10,000. Okay?
then equity shareholders to be allotted 6 equity shares of 10 each at a premium of 10%. I told you 10 each 10% premium means agreed price is 11 rupees and also 3 rupees cash. Against what? Against every 5 shares. For every 5 old share, equity shareholders will get 6 new share. And they will also get 3 rupees cash. They will also get 3 rupees cash. So let's calculate here. For every 5 old, 6 new share. I hope you understand this. For every 5 old, 6 new. For every 5 old, it's very clearly given. For every 5 old, it's very clearly given. For every 5 old, 6 new share and cash. So cross multiply. 5 old, 6 new. How many old equity share we have? We have 20,000 old equity. We have 20,000 old. 5 old, 6 new, 20,000 old. How many new? The answer is 24,000 new equity share of 10 each at agreed price 11. So that comes to 64. And 5 old, 3 rupees cash. For 20,000 old, how much cash? That comes 12. So total PC, preference shareholders 110, equity shareholders 2,60,000, 264 in the form of equity share, 12 cash 386. कितने लोगों को पीसी का कैलकुलेशन समझ में आ गया है? चैट में लिखो यस वाई, चैट में वाई वर्ड लिखो, समझ में आ गया है पीसी का कैलकुलेशन? जो लोग को ये पीसी का कैलकुलेशन समझ में आ गया है, चैट में वाई वर्ड लिखो। वेरी गुड, 22 आंसर्स हैव कम, मतलब 22 बच्चे लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए अब पूछा क्या है? जर्नल टू क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड एंड ओपनिंग एंट्री। जर्नल पूछा है, अब इसे जर्नल करना है कि एक बार ले 2-3 प्रैक्टिस तो हो गया ना हमारा। चलिए जर्नल एंट्री इन द ओल्ड कंपनी स्टार्ट करते हैं। जर्नल ऑफ ओल्ड, कौन है ओल्ड कंपनी? इलोरा। जर्नल एंट्री की लाइन ड्रॉ कर दो। जर्नल इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। सबसे पहला काम, बिफोर एक्विजिशन, Ilora will pay dividend at 10% on equity share. Preference dividend was already paid before acquisition. Before acquisition. So हमारी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, अरे इक्विटी कैपिटल 2 लाख है, उसके पर मुझे कितना डिविडेंड देना है? 10%। तो जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री बताओ डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। डिविडेंड डेबिट टू बैंक, कैशो बैंक के कीवर्ड है, being 10% equity dividend paid. And second entry, profit and loss to dividend. डिविडेंड पीएनएल में जाता है ना। Now this entry is passed before acquisition, मतलब कि ये हमारा टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। Being dividend transferred to P&L, मतलब ये एंट्री करने के बाद अब हमारा जो कैश बैंक का फिगर है वो 35 नहीं है, उसमें से 20 आउट हो गया। एंड जो पीएनएल है वो भी 30 नहीं है, उसमें से 20 आउट हो गया है। ये बात याद रखना, ठीक है?
कैश बैंक अभी सिर्फ 20 है एंड पीएनएल भी 30 में से 20 आउट हो गया है। एनी क्वेश्चन हियर? ओनली डिविडेंड के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं माइक में। डिविडेंड के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क ऑन द माइक। हमने इक्विटी डिविडेंड पे कर दिया ओवर। तो ऐसा समझो ना, इक्विटी डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो डिलीट कर दो। सेम वे ये बैंक है ना, 35 के बदले में ओनली 15 ही बचा है, वही दिया है, ऐसा ही समझिए। और ऐसा ही समझो ना, पीएनएल 30 नहीं है, 20 चला गया, ओनली 10 दिया है। ऐसा ही समझो कैश बैंक 15 बचा है एंड पीएनएल भी 30 माइनस 20 सिर्फ 10 बचा है। ठीक है, समझने के लिए। अब एक्चुअल हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ओके, अब हमारी मेथड क्या है पीसी की? नेट पेमेंट मेथड। ओके, नेट पेमेंट मेथड नॉलेज के लिए बता सकते हैं आप, क्वेश्चन में कहां लिखा है व्हाट इज टेकन, ये वर्डिंग कि न्यू कंपनी टेक्स व्हाट डैश 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 असेट साइड, न्यू कंपनी टेक्स व्हाट डैश 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 लायबिलिटी। सोच के आंसर दो माइक में। अच्छे, क्वेश्चन में, आई रिपीट, मेरा क्वेश्चन सुनना, मैंने ऐसा बोला क्वेश्चन में कहां लिखा है व्हाट इज टेकन। ऐसा मत बोलना क्वेश्चन बता रहा है लैंड बिल्डिंग स्टॉक डेटा, गलत जवाब। आई रिपीट, क्वेश्चन में कहां लिखा है व्हाट इज टेकन। यदि आप बोलते ये सेकंड वाला पैराग्राफ तो आप गलत है, आप ठीक से इंग्लिश पढ़ो। इसने तो ऐसा लिखा है, while arriving at the agreed consideration the directors of अजंता valued land building stock data वगैरह। तो जहां जहां भी वैल्यू में बदलाव हुआ है सिर्फ उसके बारे में दिया है। चलो ये वाली एसेट तो टेकन है, मैं मानता हूं, प्रॉब्लम ने तो लायबिलिटी के बारे में भी नहीं बताया है। तो लायबिलिटी लिया है कि नहीं लिया है, और रिमेनिंग एसेट लिया है कि नहीं लिया है। अब ध्यान से सुनना, एक डिफॉल्ट रूल सुनना एंड कॉमन सेंस चलाना। हाँ, जस्ट इमेजिन करो रिलायंस इंडस्ट्री एक तुम्हारी कंपनी को ले रही है, यू आर द सोल शेयर होल्डर। अपना सोल शेयर होल्डर नहीं, एक काम करते हैं ना, 54 शेयर होल्डर है तुम्हारी कंपनी को। अपनी कंपनी का नाम क्या है? बीकॉम ऑनर्स एच लिमिटेड। आप लोग 54 स्टूडेंट शेयर होल्डर है, अच्छी कंपनी है, यू आर द ओनर 54 ओनर। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तुम्हारी कंपनी ले लिया है। ठीक है, तो एवरी 54 शेयर होल्डर को रिलायंस कंपनी ने नेट पेमेंट मेथड डायरेक्टली पीसी दे दिया है, शेयर्स एंड कैश जो भी देना है दे दिया है। सो रोल नंबर 1 को बुलाया, तुम अपना कैश शेयर्स ले लो, रिलायंस ने बोला। तो रोल नंबर 1 ने कैश और शेयर्स लिया, वो कंपनी छोड़ के चला गया। रोल नंबर 2 को बोला कैश शेयर्स ले लो, उसने भी लिया, कंपनी छोड़ के चला गया। ऑल 54 स्टूडेंट को, क्योंकि कंपनी का नाम ही है 54 स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स एच लिमिटेड, ऑल 54 स्टूडेंट को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैश शेयर्स पीसी दे दिया, वो लोग कंपनी छोड़ के चले गए। अब कॉमन सेंस चलाओ, यदि सब शेयर होल्डर कंपनी छोड़ के चले गए तो कंपनी का सभी असेट लायबिलिटी का क्या होगा? आंसर ऑटोमेटिकली नया कंपनी के पास चला गया। सो नेट पेमेंट मेथड में याद रखना, एक डिफॉल्ट एजम्पशन है। नेट पेमेंट मेथड में डिफॉल्ट एजम्पशन है, नेट पेमेंट मेथड समझते हैं ना, ये पीसी की नेट पेमेंट है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पैसा देना। नेट पेमेंट मेथड में डिफॉल्ट एजम्पशन ये है, न्यू कंपनी ऑलवेज टेक्स ओवर ऑल द असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटी। क्लियर? ओवर। नेक्स्ट पॉइंट। खाली अभी मेरी एक समस्या है, जब भी नेट पेमेंट मेथड है एंड ऑटोमेटिकल, हाँ, ओनली व्हेन क्वेश्चन से समथिंग इज नॉट टेकन देन समथिंग इज नॉट टेकन, एक्सेप्ट दैट all the assets and all the liabilities are always taken over. अब क्वेश्चन ये है, चलो all the asset and all the liabilities are taken over, डिविडेंड तो बिफोर एक्विजिशन पे किया है, प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या होता है? दे आर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। कौन पे करता है? नॉर्मली ओल्ड पे कंपनी पे करती है। तो यदि लिक्विडेशन एक्सपेंस 5000 ओल्ड कंपनी को पे करना है, लिक्विडेशन एक्सपेंस ओल्ड कंपनी को पे करना है, तो फिर नया कंपनी के पास
कितना कैश बचेगा ले लेने के लिए, तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट पेमेंट में all the assets and all the liabilities are always taken over, except when question specifically say something is not taken. But in that problem, if there is any liquidation expense, तो फिर ओल्ड कंपनी उतना पैसा अपने पास रख के रिमेनिंग कैश न्यू कंपनी को देगी। बात समझ में आया क्या बोला मैंने? यदि इफ क्वेश्चन सेज नेट पेमेंट मेथड है, सो डिफॉल्ट assumption all assets all liabilities are automatically transferred, but at that time if there are some liquidation expense, तो obviously वो कट करके लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए पैसा लगता है, वो कट करके रिमेनिंग कैश ओनली न्यू कंपनी के पास जाएगा। तो ये बात हमने नोट में लिख के रखा है। आई सपोज नहीं लिखा है तो देखिए, इन नेट पेमेंट मेथड जो लोग लास्ट लेक्चर मिस किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा का यहां तक का, ये लास्ट लेक्चर का है, स्क्रीनशॉट ले लो इफ एनी ऑफ यू मिस लास्ट लेक्चर। इन नेट पेमेंट मेथड, सिंस सेलिंग कंपनी शेयरहोल्डर्स रिसीव्स पीसी, hence they leave the company, hence automatically all asset and liabilities are taken over by purchasing company, except when specifically given something not taken over. Now since all asset including cash is taken, and if question says there are some liquidation expenses, then old company will keep cash for that expense for spending, and only remaining expense will be taken over by purchasing company. Remaining cash will be taken over by purchasing company. ठीक है, चलिए with that background हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। जर्नल से सम करने को बोला है तो जर्नल करते हैं। क्या स्टेप 1 बताओ? फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड। क्या रूल है? एक्सेप्ट कैश तो सब असेट ट्रांसफर कर दो, कैश के लिए अलग से बात करते हैं। ट्रांसफर इज कंपल्सरी, ट्रांसफर इज एट बुक वैल्यू, क्योंकि मुझे कंपनी बंद करनी है। अब कंपनी बंद ही करनी है तो डेफिनेटली सब असेट ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रांसफर ऑल द असेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, वेदर न्यू कंपनी टेक्स ओवर और नॉट, ट्रांसफर इज कंपल्सरी एट बुक वैल्यू। ए। बी में क्या है? कैश बैंक। If cash bank taken, then that much you transfer, remaining you open account. C, accumulated losses, fictitious assets, equity shareholders में जाएगा। So start करिए अपना प्रॉब्लम में। लैंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक डेटर्स, ट्रांसफर एट बुक वैल्यू टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश बैंक 35 में से 20 तो डिविडेंड गया, 15 बचा, लेकिन 5 मुझे लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए रखना है। सो 10,000 आई हैव टू ट्रांसफर। 5,000 है ना लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए, सो 10 आई विल ट्रांसफर। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। तो चलिए realization account debit, transfer everything, transfer is compulsory, to land building 2 lakh, to machine 1 lakh book value, to stock 2 lakh, to debtors 50,000। क्या आप में से कोई मुझे कैश एंड बैंक का फिगर बता सकते हैं? टेकन ओवर, तो खास लिखना टेकन ओवर कितना? 35 में से 20 का डिविडेंड गया और 5,000 में लिक्विडेशन एक्सपेंस स्पेंड करने वाले हैं।
5,000 क्या स्पेंड करेंगे? लिक्विडेशन एक्सपेंस स्पेंड करने वाले हैं। सो बचा हुआ कैश लेके जाएगी न्यू कंपनी। कितना बचेगा कैश? 10। बाद में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लॉसेस है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर में डिवाइड करते हैं ना। इसमें कितना हो गया? 5,60,000 being assets transferred रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी तो कंपलसरी ट्रांसफर करना होता है। क्या बोला? कंपलसरी, ये तो बुक वैल्यू पर होता है। तो इसके लिए क्या रूल है? इफ टेकन ट्रांसफर, इफ नॉट टेकन ओपन अकाउंट, ये तो कंपलसरी है। चलिए, स्टेप 2, फिनिश बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्या है स्टेप 2? फिनिश बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैसे? इक्विटी कैपिटल ओपन इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट, प्रीफरेंस कैपिटल ओपन प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स अकाउंट, रिजर्व्स इक्विटी शेयरहोल्डर्स, लायबिलिटी कंपलसरी ट्रांसफर। क्या बोला? इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट, प्रीफरेंस कैपिटल प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स अकाउंट, रिजर्व्स इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट, लायबिलिटी कंपलसरी ट्रांसफर। तो चलिए, अपना प्रॉब्लम क्या है? अपना प्रॉब्लम, प्रीफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स, फिर इक्विटी कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, रिजर्व एंड पीएनएल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, डिबेंचर एंड क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, कंपलसरी एट बुक वैल्यू। करिए। सिक्स परसेंट प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट to preference shareholders being preference share capital transferred. Then equity share capital to equity shareholders being equity share capital transferred. Then reserves and P&L. क्या बोला मैंने? Reserves and P&L ओके। अब लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में। रिजर्व्स डेबिट पीएनएल डेबिट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। लायबिलिटी में क्या क्या है? कंपलसरी ट्रांसफर एट बुक वैल्यू, compulsory transfer at book value,
being liabilities transferred. ठीक है, डिविडेंड के बाद में इधर से एडजस्टमेंट स्टार्ट होती है। सो स्टेप 1 फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड खत्म हो गया। स्टेप 2 फिनिश बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड खत्म हो गया। स्टेप 3 क्या होगा? अब ओल्ड कंपनी परचेसिंग कंपनी से पैसे मांगेंगी, आस्क फॉर मनी, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड पीसी। न्यू कंपनी परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन, रिकॉर्ड पीसी, न्यू कंपनी परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन, record PC means ask for money. New company and purchasing company, we are using the word interchangeably. Huh? PC and उसके बाद वाला स्टेप receive PC, cash debit, shares debit to new purchasing company. देखो कभी कभी न्यू कंपनी परचेसिंग कंपनी एग्जिस्टिंग भी होती है, जैसे रिलायंस ने कोई कंपनी ले लिया, बट स्टिल वी यूज द न्यू वर्ड। रिसीव पीसी, कैश डेबिट 12,000, इक्विटी शेयर्स 2,64,000, प्रीफरेंस शेयर्स भी मिल रहा है 1,10,000 टू दैट न्यू कंपनी 3,86,000। So record PC and receive PC. क्या बोला मैंने? Record PC and receive PC. Record PC and receive PC. न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, अपने को जर्नल करने को बोला है ना, सो बताइए जर्नल क्या होगा? एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 नहीं, सॉरी, एंट्री नंबर कितनी थी? 8, एंट्री नंबर 8 है, सॉरी नॉट 5, एंट्री नंबर 8, रिकॉर्ड पीसी, न्यू कंपनी, उनका नाम क्या था? अजंता लिमिटेड। To realization, being PC recorded. Now receive PC, cash debit, equity shares debit, preference shares debit to new company. Being PC received. Record PC, receive PC. Step 1 asset side over, liability side over. Record PC means ask for money, receive PC. अब क्या होगा? अब जस्ट इमेजिन करो, मैं कंपनी ने पीसी दे दिया है, ओल्ड शेयर होल्डर्स कंपनी छोड़ के चले गए, तो नया कंपनी क्या करेगा? सब असेट लायबिलिटी ले लेंगे, सब असेट लायबिलिटी लेके चला जाएगा। बाय चांस
एज पर एग्रीमेंट कोई असेट लायबिलिटी नहीं टेकन ओवर है तो फिर होल्ड कंपनी बाजार में बेच सकती है कैश टू रियलाइजेशन, यदि ऐसा है तो। हाँ, इफ एनी असेट लायबिलिटी इज नॉट टेकन तो भी हम बेच देते हैं बाजार में, बट हमारे में ऐसा कुछ है ही नहीं। सो स्टेप 5, डिस्पोज ऑफ असेट्स, ऐसा कुछ है तो नॉट टेकन बाय न्यू कंपनी, बाजार में बेच देंगे कैश टू रियलाइजेशन। पे ऑफ या तो डिस्पोज ऑफ लायबिलिटीज नॉट टेकन बाय न्यू कंपनी। ऐसा कुछ है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में तो ऑल असेट ऑल लायबिलिटीज आर टेकन। नेक्स्ट, लिक्विडेशन एक्सपेंस, जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। 5000 था ना अपने प्रॉब्लम में, तो एंट्री कर दो। हमने ओल्ड कंपनी ने 5000 बचा के रखा था, वो नया कंपनी को उतना कैश नहीं दिया था। बिंग liquidation expense paid, B liquidation expenses paid। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब हमें प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पे करना होगा। उसके बाद में 9th स्टेप होगा क्लोज रियलाइजेशन। हमारे को पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स पे करना होगा। देखो ना, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को मनी पेएबल 1 लाख है फॉर देयर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और उसे पे कैसे कर रहे हैं? 1,10,000 का प्रीफरेंस शेयर्स। ये जो नया वाला प्रीफरेंस शेयर्स मिला ना अभी अभी 1,10,000 का, वो मुझे पुराने प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है। सपोज मैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट ड्रॉ करके बताता हूं। पेएबल 1 लाख था और पेड 1,10,000 कर रहा हूं, तो 10,000 तो लॉस हो जाएगा रियलाइजेशन में। सपोज मैं कंबाइन एंट्री करता हूं तो 1 लाख पेएबल है, 1 लाख पेएबल है एंड पेमेंट 1,10,000 का कर रहा हूं बाय गिविंग न्यू प्रीफरेंस शेयर्स। कोई मुझे एंट्री बताना चाहता है? कंबाइन एंट्री, डायरेक्ट एंट्री, क्या मुझे कोई एंट्री बताना चाहता है? मेरी लायबिलिटी 1 लाख की है, मेरी लायबिलिटी तो 1 लाख की है, मगर पेमेंट 1,10,000 का करता हूं प्रीफरेंस शेयर्स इन अजंता। ये वाला, ये ना प्रीफरेंस शेयर्स इन अजंता है, इक्विटी शेयर्स इन अजंता है। तो 10,000 का डिफरेंस क्या लिखूं मैं? ये लॉस हो गया। 12 स्टैंडर्ड डिसोल्यूशन में इफ यू रिकलेक्ट, if the preference shares are very close to partners loan, if you pay partners loan more money or less money, profit loss realization में जाएगा। being preference shareholders paid off। अब नेक्स्ट स्टेप है क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करूं? क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, तो मुझे रफ में वर्किंग में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस कितना है। टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस कितना है, मुझे वर्किंग में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे, एक एक एंट्री देखते हैं। एंट्री नंबर 1 में रियलाइजेशन नहीं है, एंट्री 2 में नहीं है, एंट्री 3 में 560 डेबिट,
एंट्री 3 में 560 डेबिट है। आप भी ऐसा वर्किंग में रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, ये एंट्री नंबर है। फिर एंट्री 4 में कुछ नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, हमारी लैब 6 किधर है, 7 में है। कितना है 7 में? 2,50,000 क्रेडिट। एंट्री नंबर 7 लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए। इनफैक्ट स्टेप 1 फिनिश असेट साइड, लायबिलिटी साइड, 250 क्रेडिट, एंट्री नंबर 7। पता है ये असेट ट्रांसफर करने के लिए था, ये लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए था। फिर एंट्री 8 में है ना पीसी 386। एंट्री 9 में नहीं है, एंट्री 10 में एक्सपेंसेस है। एंट्री 11 में भी लॉस ऑन प्रीफरेंस शेयर्स है। ये अपने लिए डिस्क्रिप्शन मेरे लिए लिख रहा हूँ, आपके लिए लिखता हूँ, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में खाली एंट्री नंबर बस है। हो गया, इतने ट्रांजैक्शन रियलाइजेशन अकाउंट में था, इतने ट्रांजैक्शन रियलाइजेशन अकाउंट में था। क्लोज करके प्रॉफिट लॉस बताओ। क्लोज करके प्रॉफिट लॉस बताओ। मेरे पास स्केल्स ही नहीं है, क्या आप क्लोज करके प्रॉफिट लॉस बताएंगे? क्रेडिट का टोटल है, मेरे पास स्केल्स ही नहीं है 636, और डेबिट का टोटल है 575। क्रेडिट इज मोर, बट बिफोर दैट एक बार चेक कर लो आप जरा सब एंट्रीज, आपके सामने पूरा का पूरा बोर्ड है। कहाँ कहाँ है रियलाइजेशन अकाउंट? एंट्री नंबर 1 560, फिर मतलब एंट्री नंबर 3 में 560 है, फिर एंट्री नंबर 7 में 250 है, फिर एंट्री 8 में 386 है, फिर एंट्री 10 में 5000 है, एंड एंट्री 11 में 10,000 है। सही है, क्रेडिट इज मोर, राइट? सो क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। Is that 61? Yes. कहाँ जाएगा ये प्रॉफिट लॉस? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन विल गो ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्या एंट्री कर दूं? रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बिंग क्रेडिट साइड ज्यादा है, प्रॉफिट होता है ना। रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर हम लोग हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं। इस स्टेज पर बचेगा क्या? लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड असेट साइड में जो पीसी का कैश शेयर्स मिला था ना, कैश और इक्विटी शेयर्स, बाकी तो सब चला गया। ऑल द असेट्स न्यू कंपनी ने ले लिया,
जो एग्जिस्टिंग कैश था डिविडेंड और एक्सपेंस करने के बाद वो भी वो लोगों ने ले लिया, तो हमारे पास अभी सिर्फ वही बचा है जो नया कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए दिया है। सो लास्ट स्टेज 13th अवेलेबल कैश शेयर्स जो था इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट कैश 12,000 मिला था ना नया कंपनी से एंड इक्विटी शेयर्स। कितना इक्विटी शेयर्स मिला था मुझे? 264 का, और ये 12 कैश मिला था। ये 110 प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया था। 264 अबे बी कैश और इक्विटी शेयर्स गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बस ओल्ड कंपनी की बुक्स खत्म हो गई, ओल्ड कंपनी की बुक खत्म हो गई हमारी। पूरा सम आपके सामने है। द एंटायर सम इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब हम लोग न्यू कंपनी की बुक्स ओपन करेंगे। पता है ना, परचेसिंग कंपनी 3 एंट्री करती है। फर्स्ट बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर, सेकंड 1 बाय 1 असेट्स टेकन ओवर निकालेंगे, थर्ड पेमेंट का पीसी करेंगे। चले, चलिए। इफ यू डन अप टू दिस, डी फॉर डन लिखो चेक में, तो मुझे मालूम पड़ेगा, तो मैं आगे जाता हूँ बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। डी फॉर डन लिखो। जो लोग ने यहां तक किया डी फॉर डन लिखो। वेरी गुड, 25 पीपल लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। वेरी गुड। चलिए, अब बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, उसका नाम है अजंता। ठीक है, बुक्स ऑफ अजंता। परचेसिंग कंपनी है ये। परचेसिंग कंपनी मेनली 3 एंट्री करती है, मेनली 3 एंट्री। कौन सी? नंबर 1 फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू liquidator of old company, TC amount. Being business of Ilora Limited taken over.
ओके, बीइंग बिजनेस ऑफ इलोरा लिमिटेड टेकन ओवर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट एंट्री? सो हम अभी अजंता है, हमने एक बिजनेस खरीदा है, ऐसा समझो बिजनेस नाम का बॉक्स खरीदा है। अब क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग 3,86,000 का पेमेंट करने वाले हैं। तो पेमेंट करने के पहले बॉक्स तो खोलेंगे ना, और एक एक अंदर जो भी है निकालते जाएगा। सो सेकंड एंट्री है, एक के बाद एक असेट्स आ जाएगा। सो असेट्स टेकन एट एन, लिखना मत, असेट्स टेकन एट एन एग्रीड वैल्यू, वो अंदर से बाहर निकलेगी, लायबिलिटी भी निकलेगी। अब बॉक्स खाली हो गया, क्रेडिट वोट गोज आउट, फेंक दो, बॉक्स का नाम बिजनेस परचेस है। सो नेक्स्ट एंट्री, assets taken at an agreed value, liabilities taken at an agreed value, बॉक्स खाली होके फेंक हो गया, टू बिजनेस परचेस। चलो अब क्या क्या असेट्स है, क्या क्या असेट्स है? लैंड बिल्डिंग नया वैल्यू देखो, सब असेट लिया है, मशीनरी नया वैल्यू, स्टॉक, डेटर्स के लिए सामने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, कैश बैंक, इतनी असेट है। कॉमन डेप्ट कैंसलेशन बाद में आएगा, इंटर कंपनी डेप्ट कैंसलेशन बाद में बात करेंगे। पहला सब असेट्स की नया वैल्यू लिखना, पता है ना नया वैल्यू भी आपको दिया है, कितना है नया वैल्यू? लैंड बिल्डिंग की 250, स्टॉक का 220, मशीन का बुक वैल्यू, डेटा सेट बुक वैल्यू लेना है बट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है। बाद में इंटर कंपनी डेप्ट कैंसिल भी करेंगे, वो भी मीनिंग देखेंगे हम। और कैश बैंक के बारे में हमको पता है ना, 30 में 20 डिविडेंड दिया था, 5 एक्सपेंस के लिए गया था, तो 10,000 था, 10,000 इधर लिखा था ना, कैश बैंक टेकन ओवर 10। चलिए एंट्री करो, क्या क्या है, एक ऊपर एक दो लाइन छोड़ देना, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, न्यू वैल्यू, मशीन न्यू वैल्यू, एग्रीड वैल्यू दिया है विच इज बुक वैल्यू आई सपोज, स्टॉक, डेटा उसके सामने आरडीडी आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इतनी एसेट है। और डेटा बुक वैल्यू है बट सामने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेना है। ओके तो असेट के लिए बुक वैल्यू, इफ यू रीड, while arriving at the agreed consideration, directors of Ajanta valued land bidding at 250, stock at 220, machine was valued at book value, machine was valued at book value, and data's बुक वैल्यू बट सामने आरडीडी लेना है, विल कैलकुलेट। कैश बैंक हमने कुछ किया था ना, 10,000। क्या आप में से कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट बता पाएगा? इट इज नॉट, ये गलत है जो आपके दिमाग में आया है। कोई बता पाएगा मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट? चेक में मैं भी देखूं ना, तुम ऑनर्स के बच्चे हैं या नहीं है कि डिसऑनर है। चलो, सक्षम, करण, आकृति, खुशी, कुश, विधि, साहिल, साहिल सेंडे, इतने लोग कौन है? आदित्य, और भी एक है उसका नाम भूल गया मैं, इवन राशि, वन मोर। ये सीए करने वाले का नाम लिया मैंने सब, और भी होंगे सीए करने वाले जो मुझे नहीं मालूम होगा। बताओ, क्लियरली बोला है, क्लियरली बोला है मुझे 5% डाउटफुल डेट्स चाहिए, ठीक है।
डेटर्स 5% डाउटफुल डेट्स, मेरा डेटर्स था 50,000, फिर भी 2,500 क्यों नहीं आएगा? पता है क्यों? डेटर्स ऑफ इलोरा, ये जो डेटर्स है ना, इंक्लूड्स, हम खुद ही, जो हम बाद में कैंसिल करने वाले, इंटरकंपनी डेट कैंसिल करेंगे। अभी सिखा दूं पहला इंटरकंपनी डेट कैंसलेशन? चलो वही सिखा देता हूँ, क्योंकि उसका काम है मुझे इसमें। मैं अभी जो सिखा रहा हूँ आप सबको आता है, वीडियो देखने वाले फॉर इन्फॉर्मेशन, ये जो स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उन्होंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग कंपनी रीड किया है, उसमें हमने ये एडजस्टमेंट सीखा है, मगर एक बार वापस सिखा देता हूँ, सुनना। हम अमालगमेशन सीख रहे हैं, राइट? मेनी ए टाइम बिफोर अमालगमेशन टू कंपनी में ऑलरेडी हैव ए ट्रेड रिलेशनशिप विथ ईच अदर। क्या बोला? बिफोर अमालगमेशन टू कंपनी में ऑलरेडी हैव ए ट्रेड रिलेशनशिप विथ ईच अदर। सपोज एक कंपनी का नाम अजंता है, एक का नाम है इलोरा। क्या बोला? एक का नाम है अजंता कंपनी, एक का नाम है इलोरा। ऐसे तो ये अमालगमेट होने वाला है, बट बिफोर अमालगमेशन उनका ऑलरेडी ट्रेड रिलेशनशिप है। जैसे कि अजंता इलोरा से पहले गुड्स खरीदता था, तो बिफोर अमालगमेशन, तो ये जितने भी डेटर्स होगा ना इलोरा के, टोटल डेटा रिसीवेबल, उसमें से 10,000 मुझे अजंता से ही लेना है। दैट मीन्स बिफोर अमालगमेशन अजंता के जितने भी क्रेडिटर्स होंगे ना, उसमें से 10,000 इलोरा लेन। क्लियर? ये मीनिंग मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको ये इंटरकंपनी डेट वापस समझाता हूं कि मेनी ए टाइम बिफोर अमालगमेशन टू कंपनी ऑलरेडी में हैव ए ट्रेड रिलेशनशिप। जैसे अजंता इलोरा का अमालगमेशन होने वाला है, बट बिफोर अमालगमेशन इलोरा यूज्ड टू सेल गुड्स टू अजंता, अजंता यूज्ड टू परचेज। तो इलोरा का जितना भी डेटस है उसमें 10,000 अजंता है, अजंता को जितना भी पेएबल है उसमें से 10,000 इलोरा है। दिस टाइप ऑफ इंटरकंपनी डेट डजंट अफेक्ट calculation of PC, close as usual, close the books of old company as usual, open the books of purchasing company as usual। बाद में जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगा, अमालगमेटेड बैलेंस शीट, तब क्या होगा? दोनों कंपनी अपना अपना डेटस बताएगी, उसमें से 10,000 तो अजंता ही है, दोनों कंपनी अपना अपना क्रेडिटर्स बताएगी, उसमें से 10,000 इलोरा है। जब तक अजंता इलोरा अलग था तब तक ठीक है, अब ये कंबाइंड बैलेंस शीट अजंता इलोरा खुद ही तो है। दैट मीन्स मुझे ही मेरे से 10,000 लेना है, मुझे ही मेरे से 10,000 पेएबल है। तो क्या करना चाहिए? ये इंटरकंपनी डेट कैंसिल करना चाहिए। कैसे? एंट्री क्या होगा? डेटर्स कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करो, क्रेडिटर कैंसिल करने के लिए डेबिट करो। सो हमारे प्रॉब्लम में एग्जैक्टली वही एडजस्टमेंट है। वापस से देखो, कंबाइंड बैलेंस शीट में डेटर कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करो, क्रेडिटर कैंसिल करने के लिए डेबिट करो। इनफैक्ट इंटरकंपनी डेट विदाउट थिंकिंग क्रेडिटर टू डेटर एक ही एंट्री होता है। अजंता इलोरा से लेना है कि इलोरा अजंता से लेना है, वो सब बाद में की बात है। एंट्री एक ही है, क्रेडिटर टू डेटर। तो ये एंट्री मैं करेगा, ये एंट्री मैं करने वाला हूं, मेरी एंट्री नंबर 4, आप बाद में लिखना। मैं ये एंट्री करने वाला हूं क्रेडिटर टू डेटर, मतलब ये जो डेटर है ये एंट्री आफ्टर टेक ओवर करना है। ये डेटर में से मेरा अभी 10,000 चला जाएगा, हम ही लोग। दैट मीन्स रियल आउटसाइडर कितना है, चेक में लिखो। डेटर्स में रियल आउटसाइड कितना है, चेक में आंसर दो जल्दी से। रियल आउटसाइड अमाउंट कितना है? अब किसी को मुझे डाउटफुल डेट्स की अमाउंट देना है? वुड एनीबडी लाइक टू गिव मी डाउटफुल डेट्स का अमाउंट? ऑब्वियसली डाउटफुल डेट आउटसाइड डेटर पर कैलकुलेट करेंगे ना, हमारा डेटर क्रेडिटर तो कैंसिल हो जाएगा। एक भी आंसर नहीं आया। कैन एनी ऑफ यू गिव मी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट? नहीं आया आंसर। ये एंट्री कर देगा मैं बाद में। ये मेरी एंट्री नंबर 4 होगी, टेक ओवर के बाद इमीडिएट। एक भी आंसर नहीं आया है। मुझे ये 5%
डाउटफुल डेट्स किसके पर कैलकुलेट करना है, एक भी अमाउंट नहीं आया है, वेरी बैड, छोड़ो। याद रखना वीडियो देखने वाले, ये दुनिया में हमको अकेला चलना है, अकेला आए थे। ये जो तुम्हारा लेक्चर देने वाले विद्यार्थी है कोई साथ नहीं देने वाले हैं। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, वेरी गुड, फास्टेस्ट फर्स्ट आज तक आया है, नाइस, एक ही का आया है लेकिन, राइट आंसर है। चलो 50 में से 10,000 जो इंटर कंपनी है वो तो कैंसिल हो जाएगा, आउटसाइड डेटर्स तो ओनली 40 है, ओनली आउटसाइड डेटर्स पर ये कर सकते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। चलिए आगे, अब मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुमको पढ़ने में थोड़ा कम। कितने लोग को ये बात समझ में आया, वो वाई लिखो, वाई कम से कम ये तो लिखो समझ में आया, तो खुद नहीं दिया कोई वादा नहीं। जितने लोग को समझ में आया इंटर कंपनी डेप्ट की एंट्री और ये एडजस्टमेंट समझ में आया, वेरी गुड, 22 लोग, अब वो लोग मेरे साथ में है, मतलब वो लोग मेरे साथ में है और समझ भी रहे, लेकिन बोलना नहीं है। बोलता है सर फीस दिया है ना इतनी बड़ी, आप ही को कैलकुलेट करो ना। मैं बोला ठीक है, मैं ही कैलकुलेट करेगा, मार्क भी मैं ही लेगा। चलिए, सो असेट हो गया अपना, ये एंट्री कर देंगे हम लोग का, असेट हो गया। चलिए लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या क्या है, एक क्रेडिटर है, सेम अमाउंट आएगा क्योंकि अमाउंट में बदली नहीं बोला है, लेकिन डिबेंचर होल्डर का अमाउंट बदली होगा। ध्यान से देखना, डिबेंचर में भी ध्यान से देखना, डिबेंचर 7% डिबेंचर्स ऑफ इलोरा, मतलब ये 1 लाख टू बी पेड 8% प्रीमियम बाय जनता। बस 2 क्वेश्चन आंसर करना है, कितना पैसा देना है, हाउ मच एंड हाउ, व्हाट वे, प्रेजेंटली हाउ मच, व्हाट वे बाद में पे करेंगे, हाउ मच, तो क्या आंसर 8% प्रीमियम, 1 लाख का 8% प्रीमियम, 1 लाख 8, व्हाट वे, वो तो जब पे करेंगे तब देखेंगे ना, जब पे करेंगे तब देखेंगे कि 9% डिबेंचर बाय 10% डिस्काउंट, अभी ओनली हाउ मच का आंसर दो। लायबिलिटीज टेकन ओवर एट न्यू वैल्यू, लायबिलिटीज टेकन ओवर एट न्यू वैल्यू, हम उसको पे कर देने वाले हैं। डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्या नाम है उसका डिबेंचर होल्डर्स का, 7%। कोई मुझे डिबेंचर्स की अमाउंट, मतलब डिबेंचर होल्डर की अमाउंट इधर दे सकते हैं, हाउ मच, अभी लिखो हाउ मच, आंसर नहीं आया है, डिबेंचर होल्डर को हाउ मच, ओ वेरी गुड, नीतीश का फास्टेस्ट फर्स्ट एंड 22 लोगों ने दिया, आस्था भी है, 1 लाख 8 राइट है, बहुत अच्छा। मैंने डिबेंचर होल्डर वर्ड क्यों लिखा, व्हाई नॉट वर्ड डिबेंचर, क्योंकि वो डिबेंचर तो ओल्ड कंपनी का होता है ना, हमें डिबेंचर होल्डर को अभी न्यू कंपनी का डिबेंचर अलॉट करेंगे, ओल्ड डिबेंचर कागज का पेपर शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू डिबेंचर। और क्या लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, कितना है क्रेडिटर्स, 1,50,000। सो एग्जैक्टली हमने क्या किया, अरे भाई हमने एक बॉक्स खाली किया जो परचेस किया था, अच्छा बॉक्स परचेस किया था, हाँ हमने एक बॉक्स परचेस किया था, वो बॉक्स का नाम था बिजनेस परचेस। तो जब परचेस किया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, तो बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ इलोरा। फिर बॉक्स में से एक एक आइटम निकालते गए, तो सब लैंड बिल्डिंग निकला, मशीन निकला, स्टॉक निकला, डेटर्स निकला, कैश बैंक निकला, डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर निकला, बॉक्स खाली हो गया, फेंक दो, तो टू बिजनेस परचेस, फेंक दिया। ओके, अब सुनना, हम डेबिट क्रेडिट टैली करते हैं, टेक्निकली यहां से यहां तक का नेट असेट है जो हमने परचेस किया है, और ये पीसी पेएबल है। यदि मेरी पेमेंट ज्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में आएगा, उसे गुडविल बोलते हैं, क्योंकि आई हैव पेड मोर मनी देन द असेट्स एक्वायर्ड। यदि डिफरेंस क्रेडिट में आता है
तो इसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और ये जो बुक कीपिंग मेथड है कि ऑल द असेट्स एट न्यू वैल्यू, ऑल द लायबिलिटीज, पीसी, डिफरेंस डेबिट, गुडविल, क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व, इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या नाम दिया इसको? amalgamation in the nature of purchase, wherein we write all the assets taken at an agreed value, all the liabilities taken at an agreed value, and difference goodwill or capital reserve। चलिए बताओ, आप में से कोई बता सकता है कौन सी साइड डिफरेंस आ रहा है? किसी ने निकाला? अरे यार मेरे पास कैलसी नहीं है आज। जल्दी से बताओ, डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का कितना है? डेबिट कितना है? 630। इज दैट राइट? यस। क्रेडिट बताओ। चेक करो जरा क्रेडिट। इज इट राइट? ओ उस्ताद लोग बोलो ना भाई, मैंने बोला ना कोई मदद नहीं करता है, जमाना ही ऐसा है, क्या करेंगे। सो डिफरेंस कितना क्रेडिट साइड आ गया? 74। इज दिस राइट और नॉट? सर गुडविल है। कितना क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल बताओ मेरे को, डेबिट का टोटल बताओ। अच्छा ये 1 लाख है, मैंने इसको 10 लिया, ये टोटल लॉन्ग है, मैं इसको 10 ले लिया, मैं 10,000 लिया इसको। $646। क्या 16,000 गुडविल है? यस सर। ओके, ये मैंने इसको है ना 10,000 ले लिया था, मैंने 646 में बिजनेस खरीदा है, पेमेंट पीसी, नेट असेट 630 निकला, तो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ा, डिफरेंस डेबिट में आया, उसे गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुडविल। चेक कर लेना, इज दैट राइट? कितने लोग का आंसर आया है गुडविल? चलिए थर्ड एंट्री पेमेंट कर दो, मेक पेमेंट। पेमेंट करना है ना इनको, धंधा खरीदा है तो। बिंग assets liabilities taken over recorded, पेमेंट करो। लिक्विडेटर ऑफ इलोरा लिमिटेड, to cash, to preference share capital, to इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू। याद रखना इश्यूइंग कंपनी हमेशा फेस वैल्यू लिखती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, इक्विटी शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 24,000 शेयर्स ऑफ 10 each,
at 11. कितना था? 24,000 equity shares of 10 each at 11. 24,000 shares, 1 rupee premium. Being PC paid. Alright, so 3 entry connected with the takeover हो गया हमारा. अब subsequent transaction है, जैसे कि वो इंटरकंपनी डेप्ट कैंसलेशन की एंट्री करनी है, देन डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट करना है. टेक ओवर का 3 एंट्री होता है, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर, देन बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स खाली करके के अंदर से असेट लायबिलिटी निकालो, और तीसरा उसका पीसी का पेमेंट करो. ठीक है, चलिए अभी जो लेफ्ट आउट एंट्री है ना, कौन सी? डेटा क्रेडिटर कैंसिल करने की. कोई भी कंपनी से किसको लेना देना है आपको सोचना नहीं है. हमने दूसरे सब्जेक्ट ये 2-3 बार पहले बहुत बार देखा ये तो. बिंग debt cancelled, being intercompany debt cancelled. Next, आगे बोलिए. डिबेंचर होल्डर को पे करिए. हाउ मच वी हैव टू पे याद है? 1,10,000. नाउ व्हाट वे? हाउ मच का आंसर 110 था. व्हाट वे? बाय 9% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट. मतलब हम जो डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं, वो जो नया डिबेंचर दे रहे हैं ना 9%, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, इनहर्ट वैल्यू ओनली 90 रुपया है. 10% डिस्काउंट में देने वाला हूं. तो एंट्री बताओ मुझे. 1,10,000 पेएबल है, सॉरी 1,08,000 पेएबल है. एंट्री बताओ. उसका नाम सरनेम लिखना है. क्या था? 7% डिबेंचर होल्डर. मेरी लायबिलिटी 1,08,000 है. मुझे उनको कैश देना है तो 1,08,000 देना पड़ेगा, लेकिन कैश देने के बदले में नया डिबेंचर दे रहा हूं. इश्यूइंग कंपनी ऑलवेज राइट फेस वैल्यू. क्या आप बता सकते हैं फेस वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू. मुझे डिबेंचर डिस्काउंट पर देना है. क्या आप में से कोई आंसर चैट पर लिख सकते हैं? क्या आप में से कोई आंसर लिख सकते हैं? फेस वैल्यू जो नया डिबेंचर दे रहा हूं, दैट टू आई एम गिविंग अ 10% डिस्काउंट, इसके लिए कितनी होगी? नया डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी होगी? अभी तक एक भी आंसर इंटेलिजेंट लोगों से आया नहीं है. चलिए, एक भी आंसर नहीं आया. इंटेलिजेंट लोग, वीडियो देखने वाले लोग, बताओ. क्योंकि इश्यूइंग कंपनी ऑलवेज राइट शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर एट फेस वैल्यू. एक 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 आंसर नहीं आया है. मुझे किसी को 1,08,000 का ऑब्लिगेशन लायबिलिटी पे करना है,
उसको मैं नया डिबेंचर दे रहा हूं, बट डिबेंचर 10% डिस्काउंट में दे रहा हूं। मतलब 90 रुपीज की डेप पे करनी है ना, तो मुझे 100 फेस वैल्यू का डिबेंचर देना पड़ेगा। क्या बोला? 90 रुपीज की डेप पे करनी है तो मुझे 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर देना होगा, और 1,08,000 पे करना है तो कितने का फेस वैल्यू डिबेंचर देना होगा? अरे यार एक तो आंसर दो, वेरी बैड। क्या होगा? देश का क्या होगा? तो देश का क्या होगा वो मालूम नहीं है, मगर तुम्हारा क्या होगा? आंसर 1,20,000 का डिबेंचर है, मैं 10% डिस्काउंट पर दे रहा हूं। आस्था आपने गलत किया है। जब मुझे सी कैलकुलेशन 90 रुपीज की डेप्ट है, पे करना है, 90 रुपीज की लायबिलिटी पे करना है, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू होनी चाहिए। जब मुझे 1,08,000 की लायबिलिटी पे करनी है तो मेरी डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी होगी? मैं 1,20,000 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट में इश्यू कर रहा हूं। ठीक है, कितने लोग को यह बात समझ में आया? कितने लोगों को यह बात समझ में आया? तो वाई वर्ड लिखो, वाई। समझ में आया तो वाई वर्ड लिखो। नीतीश को अकेले को समझ में आया, 21 स्टूडेंट को समझ में आया। बीइंग डिबेंचर होल्डर्स पेड ऑफ, डिबेंचर होल्डर्स पेड ऑफ। ठीक है, ये वाला सम खत्म हो गया। दिस सम इज ओवर। क्या आप प्रैक्टिस के लिए बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं? तो बताओ कैसे बनेगा। बिजनेस परचेज तो कैंसिल हो जाएगा, लिक्विडेटर भी कैंसिल हो गया है, फिर गुडविल टेंजिबल असेट्स में आएगा, बिल्डिंग मशीन पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट स्टॉक इन्वेंट्री में आएगा, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स कितना है? 50, उसमें से 10 चला गया, 40, उसका 2, सो 38 आउटसाइड ट्रेड रिसीवेबल। कैश बैंक 10 और कोई एंट्री नहीं है, कैश एंड कैश इक्वलेंट। फिर ये डिबेंचर होल्डर आउट हो गया, क्रेडिटर ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल, कैश हाँ माइनस प्लस करना पड़ेगा। सो आपको 10,000 का रिसीट है, 12 का पेमेंट है, तो फिर -2 मतलब बैंक कोड ही लिखना पड़ेगा। कैश 10 का रिसीट है, 12 का पेमेंट है, बैंक कोड ही। प्रीफरेंस कैपिटल शेयरहोल्डर्स फंड, इक्विटी कैपिटल शेयरहोल्डर्स फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, क्रेडिटर तो कितना था क्रेडिटर, उसमें से 10 माइनस कर देना है, 150 माइनस 10 140। डेटस डिस्कस कर दिया, डिबेंचर हो गया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ कर देते हैं, तब तक आप नॉन करंट एसेट लिख सकते हैं, अदर नॉन करंट एसेट। किसी ने अदर करंट एसेट में लिखा तो अभी चलता है, एज्यूमिंग मुझे 1 ईयर में राइट ऑफ करना है, बट जनरली ओवर द लाइफ राइट ऑफ करते हैं, तो अदर नॉन करंट एसेट। डिबेंचर खुद लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या हम लोग बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं? चलो बना देते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, चलो ना, चलो बैलेंस शीट बनाओ प्रैक्टिस के लिए। नहीं छोड़ो, बैलेंस शीट नहीं बनेगी जनता की। क्यों? कोई बता सकता है क्यों बैलेंस शीट नहीं बनाएगा? अच्छा ये बताओ, अजंता ऑलरेडी परचेसिंग कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है कि नया कंपनी था? परचेसिंग कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है कि नया कंपनी था? एग्जिस्टिंग कंपनी है। इसके लिए मुझे बैलेंस शीट बनाने के लिए एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट लगेगी, उसके अंदर ये सब ऐड करेगा। कैसे पता चला एग्जिस्टिंग कंपनी है? तो ही तो डेटा क्रेडिटर की ट्रेड रिलेशनशिप हो सकती है ना, इसके लिए। ठीक है,
चलिए कोई आगे का क्वेश्चन देखिए अभी। प्लीज आगे का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करना है? ये देख रहा है? कौन सा करना है? मैं वही देख रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन का? मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है एक्चुअली। राइट, एक काम करते हैं, जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिएगा। क्या बोला है मैंने? नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिएगा।